Good morning, dear students, and welcome to English class. Okay, today we are going to read our first poem, The Road Not Taken. As you can see this poem on the screen, The Road Not Taken is a well known poem written by Robert Frost. Okay, we will discuss here many things like about the title of the poem, about the author, and then we will explain the poem line by line or word to word, we can say, and we will also read the poem once. This well known poem is about making choices. The road, in the title, the word road is the symbol of choices we have to make in our lives. In front of us there are so many choices and decisions we have to make in our life. Sometimes we make good choices, and sometimes there are bad choices or the bad decisions that shape our life differently. Okay, the well known poem is about making choices and the choices that shape us. Shape us means shape our life. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully. Simply but insightfully, and about common ordinary experiences. He is also called a poet of common man, and he was much admired for his depiction of rural life of New England and his command on American colloquial speech. Colloquial speech means the speech or the language of the common man is called colloquial speech. Okay, he is American poet, but he has written about New England or people of the New England. So first we discuss about the title, The Road Not Taken. In the poem, the title, The Road Not Taken, means the road is the symbol of, as I told you earlier, the road is the symbol of choices, and the poet has to regret on his choices that the road he has not taken. It means कि वो जो पोइट है यहाँ पर उस रोड की बात कर रहा है या उस डिसीजन की बात कर रहा है अपनी लाइफ के, कि जो रोड या जो चॉइस उसने नहीं ली थी या नहीं उसने सेलेक्ट की थी, यानी वो रोड उसने सेलेक्ट नहीं किया था जिस पर उसको जाना चाहिए था, बाद में जिसके ऊपर उसको रिग्रेट करना पड़ा. तो टाइटल क्या है? टाइटल थोड़ा सा नेगेटिव अपने आप में ही, द रोड नॉट टेकन, यानी ये उस रोड की बात कर रहा है जो रोड उसने नहीं लिया था. शायद उसको ये लग रहा है कि जो रोड उसने नहीं लिया अगर वो लेता तो उसकी लाइफ कुछ और होती, यानी ही कुड हैव सक्सेस इन हिज लाइफ इफ़ ही chose the road he has not taken. Clear? Now we read the poem first. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Okay students, पहले हमने इसको एक बार पोइम को जैसे पढ़ा है वैसे आप सब स्टूडेंट भी इसको एक बार पढ़ें. इससे जो पोइम है उसकी जो एक उसमें म्यूजिकल जो टच होता है पोइम में, उसकी जो क्वालिटी होती है, पोइम्स जैसे कोई सॉन्ग होता है वैसे ही पोइम्स भी होती हैं जिसको
राइम के साथ सिंग लाइक किया जाता है मतलब। तो पहले उसको ऐसे पढ़ें, फिर उसके बाद उसको कुछ जो पोइम आपको समझ में आ जाएगी पढ़ते पढ़ते ही, बाकी जो नहीं आती है उसके लिए हम एक्सप्लेन करेंगे। और उसको पोइम को एक ऐसा म्यूजिकल टच देने के लिए उसको थोड़ा राइम के साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम किसकी बात कर रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं अपनी लाइफ के एक एक्सपीरियंस के बारे में। वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग थ्रू अ फॉरेस्ट एंड इट वॉज एन ऑटम डे, the two road diverged in a yellow wood. Yellow wood represents that at that time it was autumn season, because in autumn season the leaves turn yellow, and the poet reached a point where the road diverges into two roads. Two roads means when one road forked into two. Diverge means यहाँ पर है separated or forked, and yellow wood represents the autumn season, the forest in autumn season, yellow wood. And sorry I could not travel both. It's very clear fact that one traveler cannot travel two roads. He was single traveler, so he could not travel both the roads. Then he was at the point where he stood there and thought for a long time that what he could do. Sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood. तो काफ़ी देर तक ये वहाँ खड़ा रहा, तो क्योंकि एक ट्रैवलर था, दोनों रोड पे तो चल नहीं सकता था। And looked down one as far as I could. तो पहले उसने एक रोड को जितनी दूर तक वो देख सकता था उसने उसको देखा। To where it went in the undergrowth. कहाँ तक? जहाँ तक ये अंडरग्रोथ का मतलब है वाइल्ड बुशेज हैं ये, यानी जंगल में जो छोटी छोटी वो जो झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर हमें दिखना बंद हो जाता है, तो वहाँ तक उसने देखा है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, जहाँ तक देख सकता था। कहाँ तक? टू वेयर, जहाँ इट बेंट इन द अंडरग्राउथ, तो जहाँ पर ये जंगल में या झाड़ियों में जहाँ रास्ता बंद हो गया, बेंड हो गया, वहाँ तक देख सकता था। तो उसने क्या देखा उसमें? तो उसने पहले वहाँ काफ़ी देर तक सोचा, खड़ा रहा कि दोनों रोड पे मैं चल नहीं सकता, सामने दो रोड हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा, क्योंकि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसकी जो स्पेशलिटी है, इनकी जो मतलब जो फ़ैन फॉलोइंग है वो इस वजह से ज़्यादा है कि बहुत सिंपल से एक्सपीरियंसेस जो हैं ये कॉमन मैन की लाइफ में जो सिंपल जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करता है ये। तो और ये हर आदमी की लाइफ में आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही, द रोड नॉट टेकन मीन्स कि जो रोड है यहाँ पर ये सिर्फ रोड की बात नहीं हो रही है। इनकी वेल नोन फेमस पोइम्स हैं बहुत सारी, और सारी की सारी जो पोइम्स हैं मोस्टली में मतलब आपको इनको सिंबॉलिक पोइट्री मिलेगी। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है यहाँ कि ये जो सरफेस मीनिंग है वो जो डीपर मीनिंग है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में एक वर्ड को यूज़ किया जाता है, वो रोड जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंबल यूज़ किया। यहाँ पर रोड का मतलब सिर्फ रास्ता ही नहीं है, रोड नहीं है। रोड का मतलब यहाँ पर है लाइफ में जो चॉइसेस और डिसीजंस होते हैं जो हर इंसान की लाइफ में उसको फेस करने पड़ते हैं, यानी वो जो डिसीजंस हैं वो आदमी को किस तरह से लेने चाहिए। तो जब भी लाइफ में कोई डिलेमा होती है, लाइफ में कोई कन्फ्यूज़न होती है, तो तब हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट आकर के गाइड करेगा। द रोड नॉट टेकन तब हमें याद आएगी कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, कि डिसीजंस कैसे होने चाहिए, कैसे हमने लेने चाहिए। क्योंकि एक बार अगर हम लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं वो हमारी लाइफ में बदले नहीं जा सकते वो, और जो बदले नहीं जा सकते हैं, जो हमारी पूरी लाइफ को, फ्यूचर को शेप करने वाले हैं, तो उन डिसीजंस में कभी भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो गाइड करते हैं। और अगर हमने वो कर भी ली जल्दबाजी, कई बार डिसीजंस अच्छे हो जाते हैं, कई बार अच्छे डिसीजन नहीं भी होते हैं, तो वो जो लाइफ में पूरी लाइफ हमने उनके लिए रिग्रेट करना पड़ता है। तो पूरी लाइफ रिग्रेट करें गलत डिसीजन ले करके, बजाय इसके तो हमें जो डिसीजंस हैं वो थॉटफुली, वाइजली लेने चाहिए।
ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है। तो जो रोड है, ये रोड का मतलब यहाँ पर डिसीजन है। या तो जब दो डिसीजन सामने होते हैं लाइफ में, ऐसी बहुत बार स्टेज ऐसे आती है कि जहाँ पर हमारे सामने दो रास्ते होते हैं कि किस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, यानी कौन सा डिसीजन हमने लेना चाहिए, यानी किसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, किसको हमने रिजेक्ट करना चाहिए। तो वहाँ उस स्थिति में, उस पोजीशन में, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, तो क्योंकि हम दोनों रास्ते पर नहीं चल सकते। और ये भी इंसान को ध्यान में रहता है कि एक बार अगर हमने डिसीजन ले लिया उसको बदला नहीं जा सकता। वंस वी टेक द डिसीजन इट कैन नॉट बी अनडन। तो इसलिए वो काफ़ी देर तक वहाँ सोचता है और एक रास्ते को, यानी एक जिस भी रास्ते पर जाने वाला था, दो में से उसने पहले एक को देखा, काफ़ी देर तक देखा, वहाँ तक जहाँ तक वो देख सकता था। एंड देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। और फिर वो क्या करता है, देन टुक द अदर, तब उसने उस दूसरे रास्ते को, जो सेकंड रोड को देखा, जस्ट एज फेयर। जस्ट एज फेयर का मतलब क्या है यहाँ पर, इट वॉज एज गुड एज द फर्स्ट वन। फेयर मीन्स गुड, वो भी इतना ही जैसे दिखता था जैसे पहले वाला दिखता था। जस्ट एज फेयर, बोथ द रोड्स वर इक्वली गुड इन फर्स्ट अपीयरेंस एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और लगता है कि इसका जो क्लेम है, यानी उसका जो ऑप्शन था वो भी बेटर ऑप्शन था। जैसे पहले फर्स्ट को देखा, जहाँ तक देख सकता था ठीक लगा, फिर उसने सेकंड को भी देखा, जस्ट एज फेयर, वो भी उसको इक्वली लगा, इक्वली गुड लगा जैसे वो फर्स्ट था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसका भी बेटर क्लेम था, बेटर ऑप्शन था, यार ये भी अच्छा है, ये भी चलना चाहिए। और ऐसा हर लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में ऐसा ही होता है। दो रास्ते होते हैं, दोनों हमें इक्वल लगते हैं ऑलमोस्ट, यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये फर्स्ट वाला को देखता हूँ तो ये ले लेना चाहिए, सेकंड वाले को देखते हैं यार ये भी सही है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर। ये भी घास वाला था, ग्रासी था, और वॉन्टेड बियर था। ये वॉन्टेड बियर मतलब नॉट बीन यूज्ड, कि उसके ऊपर भी चला जाना चाहिए। वॉन्टेड वियर, वियर का मतलब यहाँ पर ट्रैवल अपॉन है, ये चलना है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी चल के देखना चाहिए। ये भी मतलब वो अट्रैक्टिव था, ग्रासी था, यानी बहुत सारे लोग उसके ऊपर नहीं चले थे। जैसे जिस रास्ते पर ज़्यादा लोग चलेंगे तो वहाँ घास नहीं उग सकती, पर इसके ऊपर तो घास थी, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। तो ग्रासी का मतलब भी लेस ट्रैवल्ड था। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और both that morning equally lay, उस मॉर्निंग में जो दोनों रास्ते थे, इक्वली ले का मतलब both the roads appeared almost equal, दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन रास्ते पर कोई भी पत्ता जिसको चल करके, कुचल करके ब्लैक नहीं किया हुआ था। ट्रोडन ब्लैक, इट मीन्स नो ट्रैवलर हैड वॉकड अपॉन देम, नाइदर ऑफ द टू रोड्स हैड बीन मेड ब्लैक बाय बीइंग बीटन, बाय बीइंग ट्रोडन अपॉन। नाइदर ऑफ द लीव्स, यानी किसी भी रास्ते पर नहीं, दोनों में से कोई भी रास्ते पर कोई पत्ता, हैड बीन मेड ब्लैक, नाइदर ऑफ देम हैड बीन मेड ब्लैक बाय बीइंग ट्रोडन अपॉन। इट मीन्स कि कोई भी रास्ते पर जो पत्ता था उसको चल के, कुचल करके ब्लैक नहीं किया था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो यहाँ पर थोड़ा जो ओ है, ये रिग्रेट का एक सिंबल है। रिग्रेटफुली, द पोइट रिग्रेटफुली सेज, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैंने जो फर्स्ट था, जो फर्स्ट जो रोड था, तो मैंने वो किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते को लीड करता है, यानी एक में से दूसरा रास्ता निकलता है, दूसरा हमें तीसरे और रास्ते पर, नए रास्ते पर ले जाएगा और उससे वापस आना मुश्किल हो जाएगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मैं ये भी जानता था, मुझे ये भी संदेह था कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा।
देखिए बिल्कुल रियल एक एक्सपीरियंस है लाइफ में, आदमी की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यार इस रोड पर ना कभी और दिन चल लेंगे, चलो अभी तो ये जो दिख रहा है ना अच्छा है, तो अट्रैक्टिव जो लग रहा है इसके ऊपर चल के देखते हैं, ठीक नहीं लगा तो वापस आ जाएंगे, ऐसे ही होता है ना, फिर देख लेंगे वापस मुड़ के। पर एक बार तो उसने सोचा आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, किसी और दिन चलेंगे इसके ऊपर, पर उसको ये भी डाउट हुआ यार एक रास्ते से आगे से आगे निकलता जाएगा, क्या वापस आ पाऊँगा, ये भी उसको शक हो। और ऐसा ही होता है कि एक बार जब हम लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं हम उसको अनडन नहीं कर सकते, उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, उसको बदला नहीं जा सकता, तो इसीलिए उससे वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देन व्हाट डज द लास्ट स्टेंजा से, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. फिर पोइट क्या कहता है, I shall be telling this with a sigh. Sigh का मतलब, sigh is a symbol of a sense of regret, as the choice he has made did not prove to be satisfactory or beneficial for him. तो ये जो उसने शायद उसने जो ये रोड चॉइस जो चूज़ किया था, या चॉइस जो उसने की थी, या डिसीजन जो उसने लाइफ में लिया था, ये शायद उसके लिए ये बड़े रिग्रेट के साथ, साई बोलते हैं एक डीप ब्रेथ को, जैसे हम आह भरते हैं इसको बोलते हैं डीप ब्रेथ। सेंस ऑफ रिग्रेट है इसमें, क्योंकि जो उसने चॉइस की थी वो शायद उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या बेनिफिशियल नहीं हुई। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, और कब कह रहा होगा, फ्यूचर में, क्योंकि आज का जो डिसीजन है वो हमारे फ्यूचर को सेव करता है, पूरा फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हमने जो डिसीजन लिया इससे नहीं पता चलेगा कि डिसीजन सही था कि गलत था, ये फ्यूचर बताएगा कि डिसीजन हमने सही लिया या गलत लिया था। तो फिर वो फ्यूचर ने जब उसको बताया होगा तो फिर वो कहेगा क्या, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समवेयर एजीज एंड एजीज हैंस, हैंस का मतलब है एजीज एंड एजीज हैंस मीन्स फ्यूचर, यहाँ पर सम टाइम इन द फ्यूचर, तो फ्यूचर में बताएगा क्या, टू रोड डाइवर्स इन ए वुड एंड आई, कि एक समय था, एक टाइम था, उस टाइम की बात थी कि मैं एक रोड जंगल से जा रहा था और उसमें टू रोड्स डाइवर्स हो गए, सेपरेट हो गए, आगे उसमें दो रोड बन गए, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रोड लिया जो लेस ट्रेवल्ड था, जो कम लोग जिसके ऊपर चले हुए थे, एक थोड़ा सा वो मोर ट्रेवल्ड था और एक लेस ट्रेवल्ड था, तो जिस पर बहुत कम लोग चले थे, ना के बराबर, इन कम ही लोग चले होंगे, लेस ट्रेवल्ड, मैंने वो रोड लिया, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसने उसकी पूरी लाइफ को, लेस ट्रेवल्ड या लेस फ्रीक्वेंटेड कह सकते हैं उसको, लेस वॉकड अपॉन कह सकते हैं, तो उसी ने, उस चॉइस ने उसकी पूरी लाइफ को बदल दिया है। दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, एंड हाउ ही चॉइस हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो ये सोच रहा है कि अगर मैं वो द रोड नॉट टेकन, टाइटल पर आ जाएं, कि अगर मैं वो चॉइस ना करता लाइफ में, उस रोड पर ना जाता जिस पर वो गया है, या फिर वो रोड उसने जो नहीं लिया अगर वो उस पर जाता बजाय उस पर कि जिस पे वो गया, तो जो रोड उसने छोड़ा, द रोड नो टेकन, अगर वो उस रोड पर जाता तो उसकी लाइफ आज कहीं बेटर होती, या वो अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होता, उस रोड पर चल करके जो उसने नहीं लिया था, द रोड नॉट टेकन। यानी जो उसने वो डिसीजन लिया वो उसके ऊपर फ्यूचर में रिग्रेट कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर बताता है आज हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो उसका रिजल्ट क्या होगा, किस तरह से हमारी लाइफ को वो इफ़ेक्ट करेगा। तो ये स्टूडेंट, ये थी ये पोइम द रोड नॉट टेकन। बहुत सारी चीज़ें अब इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस, एलिट्रेशन सुना होगा आपने, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। एलिट्रेशन इज़ द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। ओके, तो हर क्या होती है, ये कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होती है
कॉन्सोनेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, वर्ड के बिगिनिंग में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड यानी जिसको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, तो अगर वो रिपीट होता है एक लाइन में एक से ज़्यादा बार, तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। हिंदी में उसको अनुप्रास कहते हैं। इट गिव्स ए म्यूजिकल इफेक्ट। वाई डज द पोइट यूज एलिट्रेशन? टू गिव द पोइम ए म्यूजिकल इफेक्ट। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा होगा वॉन्टेड वियर, स्टेंजा नंबर 2 में 3rd लाइन है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। तो वॉन्ट वियर, तो इसमें जो वो साउंड है वॉन्टेड में और वियर में वो रिपीट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन। तो सेकंड जो उसमें पोइटिक डिवाइस है वो है सिम्बोलिज्म। तो सिम्बोलिज्म इसमें बहुत यूज हुआ है, क्योंकि ये जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये सिम्बोलिक पोइट है, सिम्बोलिज्म के लिए जाना जाता है। बात एक सरफेस लेवल पे देखेंगे तो बड़े सिंपल सा इंसिडेंट है, तो द रोड नॉट टेकन, पर यहाँ पर सिंपल नहीं है, क्योंकि रोड की बात मतलब रोड ही नहीं है, रोड का मतलब है लाइफ में जो चॉइसेस हैं। ये काफ़ी सारे इस तरह के सिंबल यूज किए हैं। तीसरा इसमें है क्या क्या सिंबल एक बार हम कर सकते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 2 रोड्स आर द सिंबल्स ऑफ द चैलेंजेस और डिसीजंस और चॉइसेस वन फेस इन हिज लाइफ, वन हैज़ टू फेस इन हिज लाइफ। द चॉइसेस वी मेक डिसाइड आवर फ्यूचर। तो ये चॉइसेस के ऊपर ये वी हैव टू चूज फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स एंड ओनली टाइम टेल्स वेदर वी वर राइट इन मेकिंग द डिसीजंस और नॉट। तो उसने कहा ना, आई शैल बी टेलिंग दिस विद दिस आई समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस। कब बता रहा होगा? फ्यूचर में। तो यहाँ पर जैसे बीटन ट्रैक है, एक इसका सिंबल है ईजियर पाथ का। ये 2 रोड्स हैं ना, तो 2 रोड्स में दोनों सिंबॉलिक रोड हैं। एक है बीटन ट्रैक यानी मोर ट्रेवल्ड, ये किसका सिंबल है? ईजी पाथ का, आसान रास्ता। एक दूसरी तरफ यूज हुआ लेस ट्रेवल्ड रोड, ये किसका सिंबल है? लेस ट्रेवल्ड रोड इज अ सिंबल ऑफ रिस्की पाथ। ठीक है ना। तो इस तरह से कई सारे सिंबल, जैसे इसमें 2 रोड डाइवर्स है फर्स्ट लाइन में। डाइवर्स ये वर्ड किसका सिंबल है? डाइवर्स का मीन्स यहाँ एक कन्फ्यूजन का है, डिलेमा है, वेयर द मैन फेसिस द 2 सिचुएशंस, टू डू और नॉट टू डू। डिलेमा किसको बोलते हैं? जब हम दुविधा में होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं, टू डू और नॉट टू डू, क्या करूं क्या ना करूं, कौन से रोड पर जाऊं कौन से पर नहीं जाऊं। तो डाइवर्जन किसका सिंबल है? कन्फ्यूजन का या डिलेमा इन लाइफ। तो इस तरह बहुत सारे इसमें सिंबल्स यूज हुए हैं, इसको बोलते हैं हम सिम्बोलिज्म। तीसरा हम बात कर सकते हैं इसमें राइमिंग स्कीम। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम? द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज़ ए बी ए ए बी। फॉर एग्जाम्पल राइम स्कीम में हम लास्ट वर्ड को देखते हैं, उसकी राइम किसके साथ बनती है। जैसे फर्स्ट स्टेंजा में लास्ट वर्ड है वुड, सेकंड लाइन में बोथ। तो वुड में और बोथ में राइम नहीं है, तो वुड को हम ए देंगे और बोथ को बी। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्टूड, तो वुड के साथ मैच करता है, राइम करता है स्टूड। तो जो हमने वुड को दिया वो स्टूड को देंगे, तो बन जाएगा ए वापस। और जो स्टूड है वो कुड के साथ कर रहा है, तो फिर ए। और ग्रोथ बोथ के साथ कर रहा है, तो बोथ को हमने बी दिया था लेटर, तो ग्रोथ को बी देंगे। तो क्या राइम स्कीम बन गई? ए बी ए ए बी। वुड स्टूड कुड, ये तीनों सेम है, तो तीनों को हमने ए दिया है, और बोथ को बी दिया है, तो बोथ के राइम करता है ग्रोथ। तो पूरे जो राइम पोइम में राइम स्कीम है वो क्या है? ए बी ए बी। Okay students, I hope you have understood the whole poem, and then tomorrow we will discuss the questions and answers and the other textual exercises. Okay.